So reconcile why it is done by the businessman or any manufacturer to tally the things, whether we had this, I mean, whatever the balance we had, suppose we had a closing balance and we wanted to get the opening balance. Let's tally the opening balance is proper or not, or this much was the stock, or many a times from opening balance if something has done in between, and that will lead to closing balance of the stock. So you have seen the very basic concept which we need to apply, which we have followed in trading account. All incoming of stock we debited and outgoing of stock we have credited. Same logic we will apply. From opening to closing, all incoming to be added and outgoing to be subtracted at cost, not at selling price. Okay. Similarly, if it go reverse, closing to opening, so all incoming will be added, all outgoing will be added and incoming will be subtracted. Very simple concept. Thereby, one thing I have explained you regarding if it is given on cost to get the profitability on sale, you have to add 1 to the denominator, so on and so forth. One more thing which is very critical and important which you should learn is regarding if there is, of course, I have discussed, orally or, that if there is any changes in stock, closing stock particularly, how it is going to affect, okay, whether it is going to affect on profit directly or it is going to affect profitability indirectly. That is very important. Okay, so closing stock has direct proportion with the profit. I think I have discussed this part. Again, I am reminding you all. Yes or no? So if any changes you will do in the closing stock, suppose, because that kind of adjustment we found in the solved illustration of stock reconciliation is given. So I wanted that this part should also be clear to the learners. So suppose any changes we will do the closing stock, it is directly going to proportionate with the profit. Let us see. अभी मैंने भी पहले भी बताया, अगेन मैं रिवाइज करता हूँ. क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 4 लाख से बढ़ा दिया, ठीक है, 6 लाख का 10 लाख कर दिया. अब मेरा क्या हो जाएगा, कितना जाएगा टोटल? 49 लाख, तो सॉरी ये तो कॉस्ट है ना, 35 लाख. ये अपने को इग्नोर करना, ये वैल्यू नहीं है अपने लिए. तो मैंने, ये है एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है. अर्लियर इट वाज 6 लाख. वापस मैं आपको समझाता हूँ. इट वाज 6 लाख, 31 लाख. क्लियर है? तो ये 11 लाख का प्रॉफिट था. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ता हूँ, आई मीन ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड और एनीथिंग. So let me overvalue. Overvalued, I hope you must be knowing the concept. Overvalue मतलब जो वैल्यू है उससे मैं वैल्यू इंक्रीज कर देना चाहता हूँ, ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ कि बॉस मुझे ये 6 लाख का 10 लाख कर देना. 4 लाख से मैंने इंक्रीज कर दिया वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा. प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो जरा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 15 लाख. समझा? तो जितने से मैं क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ूंगा ना, उतने से मेरा प्रॉफिट विल गेट अफेक्टेड. इज दिस क्लियर? इट हैज डायरेक्ट रिलेशन. दिख रहा है? समझते हो डायरेक्ट रिलेशनशिप? यू मस्ट हैव स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, you must have studied in other subject as well, right? Directly proportionate. Directly proportionate. As much as you will increase, that much it will increase or decrease, and vice versa. अगर घटाओगे
again it will come back to same. Yes or no? All Yes. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो जैसे बढ़ाओगे वैसे बढ़ेगा, जैसे घटाओगे वैसे घटेगा. So we can very much keep in mind that closing stock has direct proportionate with Can I write like this? Closing stock has direct proportion with profit. वो लिख के रख लो, again future में काम आएगा, right? This kind of adjustment you will get in any of final account or your fire insurance claim or branch account or departmental account, anywhere it will come. Whatever the tips I am giving, it is going to help us in different ways or means. Okay. Now let us see the repercussion in opening stock. और ये भी लिख के रख लो, अभी बता देता हूँ. ओपनिंग स्टॉक का क्या होगा मालूम है? Will have inverse relation with the profit. I hope you must be understanding inverse relationship. ठीक है, ये फंडा लिख के रखिए आप लोग. म्हणजे क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, एंड ओपनिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. बढ़ेगा. ठीक है, जस्ट रिवर्स. बताता हूँ कैसे. इसी एग्जाम्पल को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस 5 का 10 कर लिया. मैंने क्या किया? by 5 lakhs. राइट. ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट देखना. आप अगर इसको 5 लाख से बढ़ाया तो 10 प्लस 15 25. देखो प्रॉफिट क्या हो गया? 5 लाख से घट गया. 5 लाख से कम हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. समझा मैंने क्यों लिखा ओपनिंग हैज इनवर्स रिलेशनशिप? उल्टा चलता है. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. अगर क्वेश्चन में ओवर वैल्यू दिया हुआ मतलब जो एक्चुअल वैल्यू नहीं है उसको हमने इन्फ्लेट करके रखा है, और क्वेश्चन में अंडर वैल्यू दिया हुआ मतलब वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, उसको हमने डिफ्लेट करके रखा है. ठीक है. जबकि मुझे किसके लिए चाहिए? मुझे एक्चुअल वैल्यूज चाहिए, कॉस्ट वैल्यूज चाहिए. ना तो मेरे में हक है मैं उसको इन्फ्लेट कर सकता हूँ, ना मुझे राइट है उसको डिफ्लेट करने की. क्लियर है? तो ये सारी चीजें भी आएगी आपके एडजस्टमेंट्स में. एंड देन व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, दैट इज वेरी बेसिक, यू नो.
From opening to closing, you add inflow. And subtract outflow. From closing to opening, you add outflow. And you subtract inflow. Okay? Based on that, I have given one assignment yesterday. क्या आंसर आया बच्चों को? Sir, some adjustments were a little confusing. I saw a similar question in illustration 8, page 55, but फिर भी समझ नहीं आया sir. इसलिए तो ये दिया था ना उनको, सब समझ में आ जाएगा, फिर लिखित आंसर की जरूरत क्या है? बट आप ही लोगों ने ये चैलेंज दिया था, अक्सर हम लोग ट्राई करेंगे, हमसे हो जाएगा. सर मेरा आंसर 5,62,000 आया. गलत होगा. और किसने ट्राई किया? तो चलो ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं. यही एक अनसॉल्व क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में. बाकी आप कहीं से भी ट्राई करना, बाकी सॉल्व है तो आपको एक आइडिया आएगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, it is very clear that they have given us the value on 26 and they are expecting us to get the value on 31st. म्हणजे ओपनिंग टू क्लोजिंग है, ये तो फिक्स हो गया. ठीक है, तो जितने भी इनफ्लोज होंगे वो मुझे ऐड करने हैं, जितने भी आउटफ्लोज होंगे वो मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं. Am I right? At cost price. At cost प्राइस. क्लियर है? बाकी मुझे कुछ ध्यान में नहीं रखना है. है ना? याद है बीआरएस में भी ऐसे ही करते थे हम लोग. फॉर विच पीरियड वी आर डूइंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फॉर्मेट इज रेडी टू एवरीवन. ये सारे बच्चों ने लिखा क्या? Done, sir. This is my question 21. Page these all things you should please keep a habit. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा पेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सब अपने पास रहना चाहिए. And that same should be there in your index page. Okay? कौन है यार ये?
Let us go to first adjustment. We did the purchase of 50,000. Out of this, 20,000 was delivered on 5th April. So actually delivery कितना आया? Actual how much is inflow? 30,000. Right? And will it be at cost or will it be at selling price? Purchases. At cost. Cost. So will it be added or it will be subtracted? Added. Added. सब तो आता है आपको, तो कहाँ गड़बड़ हुई? Next, out of goods sent on consignment, 30,000 were unsold. How much goods sent on consignment is not given? Okay, but how much is unsold? Actually, how much? If they have sold it, no problem. Okay, but how much actually? Then we can see, we can write in between. Okay, that goods sent to on consignment. कितना लिख सकते हैं? And again, it is given at cost price. Actually, it is always beyond cost price. जब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग कंसाइनमेंट गुड्स करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करेंगे ना, you'll understand what is happening between consignee and consignor. It is a relationship between principal and agent. So they are my agent. We are sending the goods and they are selling the goods. तो जो बेच दिया मुझे कोई लेना देना नहीं है. जो नहीं बेचा, that is my stock ना. Tell me yes or no. This is outflow of stock or inflow of stock? Inflow. कल भी गड़बड़ किया था तुम लोगों ने. सेंड मतलब क्या सर होता है? आउटफ्लो है, सेंड का मतलब आपने बोला था कल मेरे से भी. कल भी गड़बड़ But किया sir, था. अच्छा. मेरे But sir, मेरे total कितने सेंड किए वो नहीं बताया है ना. हाँ, बट चलो ठीक है, उसने बेचा, बट अभी कितने का स्टॉक मेरा पड़ा हुआ है वहां पे जो हमने भेजा है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 30,000. तो है ना, वो उसका एडजस्टमेंट दिया है ना, इतना का गुड्स भेजा है जिसका कॉस्ट 30,000 है. जो उसने बेच दिया भूल जाओ. हमको क्या ढूंढना है? स्टॉक कितना है. तो भले तुम्हारे पास पड़ा हो या उनके पास पड़ा रहे, विल इट बी योर स्टॉक और नॉट? अरे टेल मी. ये तेरा ही स्टॉक है Yes, ना, sir. बीइंग द प्रिंसिपल, इट इज देयर विद एजेंट. यस सर. ये किसका स्टॉक है? मेरा ही स्टॉक है, पड़ा सर हुआ अपना ही है. अपना ही स्टॉक है. सर आपने जब हमने दिया है तो फिर क्या बेटा? किसी ने बीच में कुछ पूछा? Understood the concept of this, then only I'll proceed. The concept is very clear. It is outgoing of stock at cost. It is my stock lying with my consignee. Consignees are my agent. Okay, we are the principal. For such So here we have to consider that 30,000 stock was sent to the consignee, of course, right? of course, yes. we have to minus, subtract. Absolutely right. And what will be the value which we will consider? Value क्या लेंगे? 30,000 Yes. Why? 30,000. Because it is given at cost price. प्राइस. अगेन अगर ये दिया रहता कंसाइनमेंट वैल्यू और कुछ सेलिंग प्राइस, तो वापस वही जो मैंने कल आपको सिखाया था, ये लॉजिक लगाते. बिकॉज मुझे हर एक चीज किस पे ढूंढना है?
किसमें ढूंढना है? कॉस्ट प्राइस Cost price. नेक्स्ट, सेल्स वर 1,70,000, कितने का सेल्स है? 1,70,000. तो तुम सेलिंग प्राइस पे लोगे या कॉस्ट प्राइस पे लोगे इसको? कॉस्ट Cost प्राइस price. कितना आएगा cost? मतलब तुमने सेल्स नहीं लेना है, तुमने क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है। Cost कितना of आएगा कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी इज 1,36,000. profitability is 1/4 on cost. So how much on sales? 1,36,000. बहुत सारे बच्चों ने 1/5 on. बहुत सारे बच्चों ने 1,36,000 डायरेक्ट आंसर ले लिया, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिनको समझेगा नहीं ये कैसे आया। सर 34,000 आएगा शायद। 34,000 प्रॉफिट आएगा बेटा, कॉस्ट कितना हाँ आएगा? प्रॉफिट आएगा, उसमें से माइनस करेंगे। माइनस किया ना, तो कितना आएगा वैल्यू? कितना आया बोलो? बहुत सारे बच्चे ने अभी आंसर दिया है। 1,36,000. अभी समझा सबको 136 क्यों लिख रहे हैं हम लोग? 1,36,000. समझा सबको? 1,36,000। ओके, नेक्स्ट। Yes, Yes sir. sir. These include 40,000 on sales on approval, half of the return before 31st. Sales और approval सीखा है आप लोगों ने? There are adjustment on this also on final account. Sales on approval मतलब समझते हो? Amazon कि पसंद है तो गुड्स रखो, नहीं तो 30 डेज में रिटर्न करो। Now you should know this concept. Very popular on online shopping. Yes or no? जो लोग बेच देता है, हमको पसंद हुआ तो हम रखेगा Yes, sir. गुड्स, नहीं पसंद हुआ तो हम रिटर्न कर देगा। यस और नो? दिस इज नोन एज सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस और सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। पहले तो ये कंसेप्ट समझाने में बच्चों को बहुत टाइम लगता था। नाउ स्टूडेंट्स व्हेन दे हैव द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, दे अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, इफ आई विल लाइक दोस करते कि नहीं हम लोग? करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट अमेज़न को हम रिटर्न भेज देते हैं व्हिच वी डिड नॉट लाइक। यस और नो? Yes sir. Yes, yes. तो इसमें से 40,000 का जो गुड्स हमने सेल ऑन अप्रूवल पे भेजा था, हाफ ऑफ दिस गुड्स रिटर्न बिफोर 31st, आधा उसमें से मेरे पास रिटर्न आ गया। तो कितना रिटर्न आया? 20,000. We should write 20,000 or we will write cost of 20,000. Sir, cost of 20,000. समझ में आ रहा है क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि जब भी हमने गुड्स भेजा रहेगा ऑन अप्रूवल, ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव सेंड इट एट सेलिंग प्राइस। यस और नो? तो जब मुझे रिटर्न लेना है to reconciliation everything I want it at cost price. तो यहाँ भी मैं कॉस्ट प्राइस ही इंक्लूड करूंगा। मैं 20,000 लूंगा या कॉस्ट प्राइस ऑफ 20,000 लूंगा? 16,000 cost सर price. 16,000 लोगे माइनस 4,000। समझा ना? अभी समझा सबको ये लॉजिक? एंड इट विल बी इनफ्लो, इट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। It will be added or subtracted. Added. Added inflow of goods. किसी को कोई डाउट हो रहा है रिकंसिलेशन में? लॉजिक समझ में आ रहा है? यही तो है रिकंसिलेशन। ठीक है,
ये 16 कैसे आया, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज consider it that cost price. तो जो 20,000 है, that is 25% निकालेंगे इसका. हाँ, उस 25 25 नहीं 20%. 25 तो 1/4 हो जाएगा भाई. 1/5 निकाला हमने. 1/5 डालेंगे. समझा बिड़ू. यहाँ पे 1/4 है ऑन कॉस्ट, तो ऑन सेल कितना हो जाएगा? 1/5. 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस. समझा? 4,000 क्या होता है? 1/5 ऑफ 20,000 होता है कि नहीं? 20,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 4,000 होगा. अगर 1/4 किए रहते तो 5,000 आ गया रहता. तो 15,000 आप लिखते हो. आपने 15,000 लिखा क्या? नहीं लिखा. आपने क्या लिखा? 16 लिखा. That means how much you have 16,000. deducted? 4,000. So how much profit you have considered? You have considered profit as 4,000. That's why you have deducted 20 minus 4, 16,000. Last but not the least, one lot of goods costing 30,000 were sold for 15,000. Outflow 30,000. और माइनस होगा, लॉस है. बाकी बच्चों का क्या रिस्पॉन्ड है? Sir, 30,000 outflow. सर 30,000 आउटफ्लो. बस इसमें कॉस्ट क्यों प्राइस पे इतना है. सिंपल. इतना दिमाग क्यों लगाना है? सेल भले वो कितने पे करे, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है. मेरा कितने का हमको तो गुड्स कॉस्ट है, प्राइस से मतलब है. हमको तो कॉस्ट प्राइस से मतलब है. तो ये मेरे को एक सेटिस्फेक्शन दिया कि अभी तुमको लॉजिक समझ में आ गया ऑफ रिकंसिलिएशन. और कहीं के भी रिकंसिलिएशन क्वेश्चन तो आप कर सकते हो. द क्लोजिंग स्टॉक ये क्या है? कितना रहा है? 4 लाख. 4,50,000. Just 1 second. Sir, 4,50,000. 4,50,000. I hope you must have got the answer. 4,50,000. Sir, the same question was done on page 55 illustration. उसमें आंसर डिफरेंट आ रहा है. तो उन्होंने कुछ एरर करा रहेगा बेटा. ओके सर. लॉजिक यही जाएगा. सर 19 वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही निकाला है ना. हाँ, जितने भी रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन रहेंगे सब ऐसे ही जाएगा.
रिकंसिलेशन के क्वेश्चंस दिए हैं ना आपके बुक में? 21 तक क्वेश्चन है सर इसमें, 21 वाला था, 19 वाला भी शायद ऐसे ही होगा। हाँ, या तो परपेचुअल सिस्टम से रहेगा, डेली वाइज में आपको फाइंड आउट करना है कि भाई मेरा क्या वैल्यू ऑफ स्टॉक है, ठीक है, या फिजिकल करके था। या तो पीरियोडिक सिस्टम देगा जिसमें आपको ये रिकंसिलेशन पूछेगा। पीरियोडिक में तुमको ये ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी पूछ सकते हो लोग, ये तो उनको पता है तुमको आता है ना। तो उसको क्या करते हैं, ऐसे सिखाते हैं। और फिर एक्चुअली इसको सिखाने का मतलब ये नहीं, इसको सिखाने का मतलब ये है कि बच्चा रिकंसिलेशन कैसे कर सकता है। ये तो मैंने हिंट लिया उसको समझने के लिए। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे रिकंसिलेशन सिखाना था कि भाई ओपनिंग दिया तो क्लोजिंग निकाल लो, क्लोजिंग दिया तो ओपनिंग निकाल लो। और हर एक कंपनी करती है रिकंसिलेशन। इनफैक्ट डिपार्टमेंटल स्टोर में डेली होता है, हर एक स्टोर में होता है। तो पता चलता है कितना एक्चुअल गुड्स या तो चोरी हो गया, या तो स्पॉइल्ड हो गया, या तो मिल नहीं रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक रिकंसिलेशन। तो प्रैक्टिकली जब भी आप कंपनी में काम करोगे एज एन ऑडिटर, अकाउंटेंट, इट विल हेल्प यू अलॉट। उस ऑब्जेक्टिव से मैंने ये कंसेप्ट समझाया। सो आई थिंक 19 वाले क्वेश्चन में हमको उल्टा जाना है, क्लोजिंग हमारा दे रखा है, हमको ओपनिंग पे जाना बस है। ऐसे ही करना है, ये क्या कंसेप्ट तो वही रहना है, ठीक है। So now next time everything related to unit 1 is over. Next time I am going to start as final account. Now you will say sir final account तो already last 2 semester में पढ़ा है, but here the final account of manufacturing concern. इसका final account हमने सीखना है, manufacturing concern का सीखना है। So you have to prepare manufacturing account. यहाँ एक अलग से account बनाना पड़ेगा, manufacturing account, additional account. आपने ट्रेडिंग से सीखा है क्योंकि आज तक आप ट्रेडर के अकाउंट्स बनाते थे। अब क्या करना है आपको, मैन्युफैक्चरर के अकाउंट बनाना, ठीक है ना। सो दैट इज एडिशनल व्हिच वी नीड टू लर्न इन एफआई बीकॉम, एफआई बैच। रेस्ट ऑल विल बी एज इट इज, वही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट होगा सेम। ट्रायल बैलेंस दिए रहेंगे, एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, वही लॉजिक इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून। और ये दोनों यूनिट आपके इंटरनल में, दिस बोथ यूनिट आर देयर इन योर इंटरनल एग्जाम, ठीक है। रिमेनिंग 2 यूनिट वी विल लर्न आफ्टर इंटरनल। सर एमसीक्यू है तो फिर हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। क्या, डोंट वरी, मैं एमसीक्यू का एग्जाम लूंगा, चिंता मत करो। एमसीक्यू You did not have to worry. So do we rejoin? 1 minute back.